ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो बैंकिंग जो होता है उसका नेसेसिटी क्या है, और इससे भी आगे जाके जब बैंक रोड पे व्हीकल टर्न करता है तो उसके लिए कौन सा मिनिमम और कौन सा मैक्सिमम स्पीड रिक्वायर्ड है। ठीक है, आई होप both of these derivations have been understood by you. Okay. Yes, so let us study the next derivation in today's lecture in this chapter, that is about the conical pendulum. ठीक है, तो everything about conical pendulum we have to study in today's lecture. ठीक है, what is conical pendulum basically? तो देखो होता क्या है ना कि अगर सपोज हम एक रिजिड सपोर्ट यहाँ पे बांध देते हैं और एक इस टाइप का थ्रेड और उसको एक बॉल अगर लटका लेते हैं, तो अभी इस बॉल को तुमको सिंपल पेंडुलम तो पता होगा, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, which is simply the if suppose we take this ball, take it here at this point here and just release it, तो वो इस तरह से ऑसिलेट करेगा, इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम. ओके, सिंपल पेंडुलम. बट व्हाट डज कोनिकल पेंडुलम मींस and how this conical pendulum is actually different from the simple pendulum is this conical pendulum is just taken to some point here at this point here, यहाँ पे उसको ले लाया जाता है और वहां पे उसको सिर्फ छोड़ा नहीं जाता बल्कि उसको यहाँ से एक वेलोसिटी दी जाती है, अंदर की तरफ उसको एक वेलोसिटी दी जाती है जिसके कारण अभी ऑब्वियसली वो यहाँ पे तो नहीं रहेगा अभी, है कि नहीं, और जैसे हम उसको अंदर की तरफ वेलोसिटी देंगे तो वो इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा इस तरह से. सो दिस टाइप ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, वी हैव टू स्टडी इन दिस लेक्चर टुडे. This is the rigid support, and suppose the height of this conical pendulum is suppose h. ठीक है, height मतलब यहाँ पे क्या होता है, the distance of the point center from the rigid support will be actually called as the height of conical pendulum. Then again the length of the string will actually be denoted by L here. तो ये जो है L मतलब यहाँ पे length of the string होगा, और at the same time ये जो radius है, ठीक है, radius of the circle in which this conical pendulum just revolves in will be actually be denoted by small r here. Okay, तो ये small r जो है तो वो उसका radius हो गया. चलो ठीक है, along with all these things we can just analyze the situation. We have to in this lecture or in this derivation we have to find out the expression for the period of conical pendulum. Let us write it on the top. We have to find out the expression for period of conical pendulum. Yes, you have to find out the expression for the period of this conical pendulum. मतलब ये conical pendulum जो है वो एक चक्कर कितने समय में काटता है, ठीक है, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है वो हमको ढूंढ के निकालना है इस डेरिवेशन के अंदर. जिसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, एंड इट विल बी डिनोटेड एक्चुअली बाय कैपिटल टी. ओके, कैपिटल टी से उसको हम डिनोट करेंगे जरूर. यस, तो कैपिटल टी इज टू बी फाउंड आउट, बट एट द सेम टाइम we can just see if suppose m is the mass of this pendulum, then whenever it is revolving, ये पेंडुलम जब घूम रहा होगा तो उस समय उसके ऊपर कौन से फोर्सेस काम करेंगे तो वो हमको यहाँ पे लिस्ट आउट करना है. Can you tell me what forces will be acting on this pendulum? Yes, Ashwini, can you tell me what will be the forces acting on this pendulum? Yes, no doubt Vivek is saying that mg, that is the weight of the pendulum is going to act in the downward direction. Very good. तो ये mg हो गया हमारा downward force. What else? Yes, the second is tension. Very good, very good. Tension is also already there. Okay, the string will provide some tension in it. So can you tell me what direction this tension is acting along? So this tension will actually be acting along the string like this. तो ये जो टेंशन है तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे. तो अभी ठीक है, टेंशन को हमको डिनोट किससे करना है, क्योंकि कैपिटल टी से तो हम डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि
क्योंकि हमको कैपिटल टी को पीरियड से डिनोट करना है, पीरियड बोलना है कि नहीं। यस ओके, सो कैपिटल टी उसको हम बोल देंगे T1, ओके। T1 इज गोइंग टू बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके। एंड पीरियड इज रिजर्व फॉर कैपिटल टी। ये जो कैपिटल टी है उसको हमने रिजर्व करके रखा है, ठीक है, पीरियड के लिए, ठीक है। तो अगर ये टेंशन T1 ये दूसरा फोर्स है, इज देयर एनीथिंग अनदर फोर्स? यस, अथर्व इज सेइंग दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आल्सो एक्टिंग ऑन इट। यस, वेरी गुड। So centrifugal force will be acting on this pendulum in this outward direction because the pendulum is revolving like this, and we know that centrifugal force always acts along the radius away from the center. Therefore ये center है तो along the radius और away from the center मतलब इस direction में centrifugal force काम करेगा, उसको हम FC से डिनोट कर सकते हैं, FC। यस, तो अब ये देखो, ये तीन फोर्सेस के चलते हम देख सकते हैं आराम से कि mg जो है वो ऑलरेडी y एक्सिस के डायरेक्शन में है, FC जो है वो ऑलरेडी x एक्सिस के डायरेक्शन में है, लेकिन टेंशन जो है वो टेंशन ना x एक्सिस के डायरेक्शन में है ना ही y एक्सिस के डायरेक्शन में है, इसीलिए टेंशन नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड, ओके। So let us try to resolve this tension in two components, one of which will be vertical and the other one will be horizontal like this. अभी इसमें अगर इस पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है उसका अगर वर्टिकल के साथ बना हुआ एंगल अगर हम बोल देते हैं थीटा है, ओके, थीटा इज गोइंग टू बी द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, ओके। तो अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ओके, और इसका ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो एंगल है तो वो भी एक्चुअली थीटा बनेगा। और जैसे कि ये थीटा बन गया तो इसका जो कंपोनेंट्स है, ये T1 का ये वाला वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है वो एक्चुअली T1 into cos थीटा बन जाएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वो एक्चुअली T1 into sin थीटा ये बन जाएगा। ये समझ सकते हैं आराम से। यस, T1 cos थीटा is the vertical component and T1 sin theta is going to be the horizontal component. Okay, now if we just see here, then the vertical component of this tension is going to balance this mg, करेक्ट है। अगर हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम यूज करेंगे ना तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इज T1 cos theta is going to be equal to mg, okay, and at the same time the second equation will be for horizontal equilibrium, which will be simply FC is equal to T1 sin theta, or we can just say T1 sin theta is equal to FC, where FC is going to be the centrifugal force। यस, तो ये दो इक्वेशंस हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 देखे रख सकते हैं, ठीक है। अभी इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमको इसके कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड? जस्ट अनम्यूट एनीवन एंड जस्ट टेल मी फास्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड? यस, कौन बताएगा? एकता बता सकते हो? What is the formula for period? Or anyone else? Speed up. चलो श्रेयस बताओ। श्रेयस, what is the formula for period of? Okay. Shreyas, can you hear me? What is the formula for period of revolution of a particle in circular motion? Uniform circular motion में period का formula क्या होता है? 1 upon frequency भी करेक्ट है, 2 pi by omega भी करेक्ट है, और 2 pi r upon v भी करेक्ट है। Yes, all these three are correct formulae। देखो, टाइम पीरियड के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। एक तो 1 upon frequency, नो डाउट,
दूसरा है 2 पाई बाय ओमेगा, बिल्कुल, और तीसरा है पीरियड इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। करेक्ट है कि नहीं? ये तीनों फॉर्मूले करेक्ट है जरूर, लेकिन अभी जैसा कि हम जानते हैं, चलो फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है ही नहीं, बट ओमेगा कैन बी फाउंड आउट एंड वेलोसिटी आल्सो कैन बी फाउंड आउट। यस, तो इसके लिए अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, ठीक है? अगर तुमको ये पीरियड का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ओमेगा वाला फॉर्मूला अगर यूज करना है, तो उसके लिए तुमको यहाँ पे जब हम एफसी का रिप्लेस करेंगे एफसी का रिप्लेसमेंट देंगे, तो उसके लिए तुमको एम आर ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस करना पड़ेगा। ये बताइए समझ में से, ठीक है? अगर तुमको पीरियड के लिए 2 पाई अपॉन ओमेगा यूज करना है, तो एफसी के लिए तुमको एम आर ओमेगा स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको ये फॉर्मूला यूज करना है t is equal to 2 pi r upon v, where v stands for the linear velocity of that conical pendulum, तो लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए तुमको fc के बदले क्या रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा? mv square upon r, जो कि उसका एक फॉर्मूला है जरूर। तो इसलिए हमको यहाँ पे fc के लिए दो ऑप्शंस है, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो वो या तो हम mv स्क्वायर अपॉन r इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या तो एम आर ओमेगा स्क्वायर ये वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अभी एफसी के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। अगर हमने ये वाला ऑप्शन चूज किया, तो हमको पीरियड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया, तो हमको पीरियड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नो डाउट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा तुम बताओ, उसके हिसाब से करेंगे। कौन सा यूज करना है? एफसी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करना है, या एफसी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है? सर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, सेकंड वाला करें, चलो ठीक है। तो देखो एफसी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हम यूज करेंगे। तो देखो ये दोनों इक्वेशंस कैसे बनेंगे, देखो। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमको इस तरह से मिलेगा, t1 into sin थीटा इज इक्वल टू, दिख रहा है ना? देखो t1 sin theta is equal to mr omega square. This is going to be the equation number 2 here, okay? And in the same way here, the equation number 1 can also be written in the same way here, that is t1 into cos theta, which is going to be equal to mg. This is equation number 1. Okay, let us take the ratio of these two equations. Okay, इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या होता है, तो इफ वी टेक द रेशियो, तो उसमें से देखो हमको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में आएगा t1 sin थीटा अपॉन, here it is t1 cos थीटा, ओके, which is going to be equal to, यहाँ पे ऊपर में आएगा mr omega square, yes, and then here it is going to be mg in the denominator, correct है? Yes, so we can just cancel out this m from both numerator as well as denominator, and even here t1 can also be cancelled from numerator as well as denominator, so that we can just be left with this sin theta upon cos theta, which is going to be tan theta actually, and that is going to be actually equal to r omega square upon g. Here we can just see that we have just stuck here. तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक तरह से अटक गए हैं, क्योंकि इसके आगे क्या करना है वो अगर हमको समझना है, तो उसके लिए एक बार सिंपली डायग्राम की तरफ देखो, ठीक है? डायग्राम की तरफ देख सकते हो आराम से। थीटा कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे थीटा है, ठीक है? लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज O, this point as C, and this will be P, okay? Just because O is the point of suspension, which can be considered as origin, then here C is the center of circle, ठीक है? Center of the circle in which the particle revolves in, and P is any point in general on the circle, okay? चलो ठीक है, अभी यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखो केयरफुली, तो कैन यू फाइंड आउट tan थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल? टेल मी फास्ट। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, करेक्ट है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अभी ऑपोजिट मतलब कौन सा है? थीटा का ऑपोजिट साइड है r, करेक्ट है? r मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्कल, एंड एडजेसेंट कौन सा है? ये देखो, ये एडजेसेंट OC, वही यहाँ पे एडजेसेंट बन रहा है, इसलिए tan थीटा विल एक्चुअली बी इक्वल टू रेडियस r अपॉन एडजेसेंट h, करेक्ट है? तो इसलिए हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो व्हाट वी नो दैट इज tan थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू r अपॉन h, ओके? अगर हम ये वाला वैल्यू tan थीटा का यहाँ पे रखते हैं,
क्योंकि इधर भी tan थीटा मिल रहा है, इधर भी tan थीटा मिल रहा है, दोनों tan थीटा को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा पता है? ये देखो यहाँ पे हमको मिलेगा दिस वैल्यू विल बी एक्चुअली r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g व्हिच इज गोइंग टू बी इक्वल टू r अपॉन h। ये स्टेप समझा सभी को ठीक से? क्या किया हमने? tan थीटा का वैल्यू एक तरफ से r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g के बराबर बन रहा है और दूसरी तरफ से tan थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में से r अपॉन h के बराबर बन रहा है। अभी अगर ये r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g का वैल्यू अगर हम r बाय h के साथ इक्वेट करते हैं तो उसमें से हमको क्या होगा? देखो ये r जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और ये g को अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे ना वो साइड में, तो हमको ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, दैट इज g by h, and that's all. Once we get this omega square, we can easily find out omega and we can get capital T as it is here. तो यहाँ से ही हम कैपिटल T का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो नेक्स्ट स्टेप में हमको ओमेगा मिलने वाला है रूट ऑफ g by h, करेक्ट है? ये मिल गया हमारा ओमेगा, राइट? एंड वंस वी गेट दिस ओमेगा we can just get that capital T, that is the time period of conical pendulum, will actually be equal to 2 pi upon omega, but omega is already there, so if we just replace it by that, then we can get this 2 pi upon root of g by h, and if we just take the reciprocal of this, okay, so we can get this as 2 pi, or we'll just write it in the next step, that is T is equal to, okay, so T is going to be equal to 2 pi in the root h upon g, and this is actually going to be the final formula for finding the period of conical pendulum. Okay, so this is going to be the formula for period of conical pendulum. If you want to express this for a period in terms of length of the pendulum, then what we have to do? अगर इसको हमको यहाँ पे h नहीं चाहिए, न्यूमरेटर में जो h हमको यहाँ पे दिख रहा है वो नहीं चाहिए, instead of that we want L and at most theta भी चल जाएगा, तो उस केस में क्या करना है हमको? तो देखो उसके लिए हमको इस ट्रायंगल को फिर से यूज करना होगा, and we have to use the definition of cos theta in this case. Do you know what is cos theta? Cos theta is actually going to be, yes, adjacent upon hypotenuse. You know this, adjacent upon hypotenuse. तो अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखो cos theta is equal to क्या बन रहा है? इस थीटा का एडजेसेंट कौन सा है? h है, और हाइपोटेन्यूज कौन है? l है, तो h upon l will be the value of cos theta. Do you agree with this? So we can just say that cos theta will actually be equal to h upon l. So from this formula we can just find out h here. तो अगर हम यहाँ से h निकाल के लेंगे तो हमको मिलेगा h is equal to l into cos theta. Okay, and if we just put this value of h here in this formula, यहाँ पे अगर हम रख देंगे उसको तो हमको ऑटोमेटिकली पीरियड का और एक फॉर्मूला मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ l, दैट इज t is equal to 2 pi root of, यहाँ पे h के बदले ऊपर न्यूमरेटर में h के बदले ये वैल्यू डाल दो, जिससे हमको मिलेगा l into cos theta upon g, that's all. This is again another formula for finding the period of conical pendulum. Getting it? Yes. और रही बात दूसरी कि अगर हम सपोज यहाँ पे mr ओमेगा स्क्वायर जो हमने यूज किया है उसके बदले अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते, mv स्क्वायर अपॉन r वाला फॉर्मूला अगर यूज करते, तो कैसे हम यहाँ पे टाइम पीरियड के ऊपर पहुंचते थे? तो उसके लिए देखो, यस, दिस इज एन अल्टरनेटिव वे. ओके, ये अभी यहाँ पे इसके आगे जो मैं करने वाला हूँ वो अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड जिसके अंदर हम यहाँ पे fc के बदले mv स्क्वायर अपॉन r ये वाला फॉर्मूला यूज करके पूरा सॉल्व करने वाले हैं फिर से, बट नॉट नेसेसरी नहीं है, या तो तुम ये वाला करो पूरा, या तो फिर ये मैं अभी जो करने वाला हूँ वो करो, बोथ आर दे आर जस्ट ऑप्शनल फॉर यू. ओके, तो अभी यहाँ पे अगर गलती से तुमने ये fc का जो हमने mr ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया था उसके बदले अगर तुमने fc के बदले mv स्क्वायर अपॉन r अगर यूज कर लिया तो देखो क्या होगा. तो हमको मिलेगा the second equation will actually be t1 sin theta is equal to mv square upon r. करेक्ट है? fc के बदले हमने डाल दिया mv square upon r. ओके, अभी फिर से दूसरा फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे एज इट इज कॉपी करेंगे जो कि t1 cos theta is equal to mg है. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन नंबर 1, and now we have to divide these two equations
as we have already done it here in this first method. ओके तो अगर हमने ये दोनों को डिवाइड कर दिया तो देखो क्या होगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पे yes here it will be t1 sin theta upon t1 cos theta, which is actually going to be equal to mv square upon r divided by mg. Yes, so that this m gets cancelled once again and t1 also gets cancelled here, and what we are left with is simply tan theta once again, which is actually going to be equal to v square upon rg, which will be another form of, that is v square is equal to rg tan theta, and v will actually be equal to root of rg tan theta. करेक्ट है? तो ये यहाँ तक तो हम पहुंच गए. चलो ठीक है, ये तो फॉर्मूला हमको ऑलरेडी मिला हुआ था. अगर आपको याद है बैंकिंग ऑफ रोड्स के अंदर जो सेफ्टी स्पीड लिमिट होता है, जब हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते हैं तभी हमको यही फॉर्मूला मिलता है. ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि v is equal to r root of rg tan theta, ये फॉर्मूला हम कई बार यूज कर सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस में ऑलरेडी यूज कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द सिचुएशंस इन व्हिच वी कैन यूज दिस फॉर्मूला वंस अगेन हियर. यहाँ पे भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जरूर. ओके, अभी अगर यहाँ पे हम tan थीटा का जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है r अपॉन h, जो कि ट्रायंगल से हमको मिलता है, ये देखो ट्रायंगल हमारे बिल्कुल सामने है, तो ट्रायंगल से हम tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं r अपॉन h. तो अगर हम वो करेंगे और उसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, बट tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन h, सो v बिकम्स इक्वल टू रूट ऑफ rg इनटू यहाँ पे tan थीटा के बदले क्या आएगा, r upon h. Okay, so that it will be in the next step r square into g upon h. करेक्ट है, जिसमें अभी r square है ना यहाँ पे r square, तो r square when it is under root, so what will happen is ये r square का जो स्क्वायर रूट है वो r बन जाएगा और उसको हम बाहर लिख सकेंगे आराम से, और इससे हमको लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगा इस पेंडुलम का, जो कि v इक्वल टू r into root of g upon h, and then we can just use the formula for time period now. तो अभी देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमको पता है, टाइम पीरियड t, yes, t is equal to 2 pi r upon v. करेक्ट है, तो यहाँ पे v का वैल्यू ये जो हमको मिला हुआ है वो हमको इधर रखना है, जिससे हमको मिलता है t is equal to 2 pi r अपॉन v, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है r इंटू रूट ऑफ g बाई h. करेक्ट है, तो अगर हम वहां पे डाल देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा रूट ऑफ r इंटू रूट ऑफ g बाई h, so that this r just gets cancelled, and if we just reciprocal this g by h, it will become h by g, and hence it will become t is equal to 2 pi into root h by g, and after putting this value of h, that is L cos theta here, then we can again get it as t is equal to 2 pi into root of L cos theta upon g as the final. That is the expression for the time period of revolution of a conical pendulum. Okay? Yes. So just write down all these things fast if you want, or just take the screenshot so that we can continue the next. Achha, just be frank and just tell me, do you want to write it down or you are going to take the screenshot? Yes. Reply fast. Okay, screenshot later. Is there anyone who is writing, or all of you are taking screenshots? अरे speak up fast, because अगर आप लिख रहे हो तो मुझे रुकना पड़ेगा थोड़ा, otherwise if you are taking the screenshots then I will just try to wait 10 seconds or 15 seconds, that's it. Okay, ठीक है, so let us take the screenshot. Do it fast. You have 10 seconds.
Yes. Okay, so the next derivation here is about, you have to find out the expression for tension in the string also. That means we have to find out this T1 here now. Okay, तो अभी हमको यहाँ पे T1 ढूंढ के निकालना है. Let's try it. Okay, लेकिन उसके लिए ये जो सब हमने किया है वो भी हमको यूज करना पड़ेगा. उसमें ये जो tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन h है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, और दूसरा ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ g बाय h है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास है. दैट इज इंपॉर्टेंट अचीवमेंट which is done through this derivation, or even this also, v is equal to root of rg tan theta, ये भी हमारा एक important achievement है इस derivation के अंदर. So let us write down all these things here, ठीक है, so that we can just get rid of this free space. Yes. So once again, we have just done this. This is the conical pendulum. The length of the string is L. H is the height of the conical pendulum. R is the radius of circle in which it revolves. Okay. And suppose M is the mass of the conical pendulum, and theta is the angle made by the string with the vertical at any position. And suppose T1 is going to be the tension in the string at any point. And suppose the forces acting on this pendulum are weight mg and centrifugal force Fc and tension in the string T1 here. Okay, so T1 can be resolved into two components, one of which will be vertical and other one will be horizontal. Since this is theta here, we can just call this component, vertical component, as T1 cos theta, and the horizontal component can be supposed to be T1 sin theta. As we can just see, the pendulum is neither moving this way or this way, so the centrifugal force is going to balance by the T1 sin theta, which gives us equation number 2 here. And at the same time, the weight of the pendulum is getting balanced by this vertical component of tension, which is T1 cos theta here. So that, which gives us the equation number 1, that is T1 cos theta is equal to mg. Okay, now how will you find out this T1 here? T1 कैसे ढूंढ के निकालेंगे? अच्छा, इसमें और एक बात कि हमने अभी यहाँ पे जो किया था उससे हमने tan थीटा का वैल्यू निकाल के रखा था. tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन h, which is just clear from this diagram only. And at the same time ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू हमने निकाल के रखा था. अगर आपको याद है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय h, ये वैल्यू भी हमने निकाल के रखा था. Let us give this as equation number 3 and 4 so that we can just use them in the derivation. Okay, so the question here is that how will you find out this T1 from these two equations here? ये दोनों equations को यूज करके T1 का वैल्यू कैसे ढूंढ के निकालेंगे? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों equations को स्क्वायरिंग और एडिंग करना पड़ेगा. देखो ठीक से, स्क्वायरिंग एंड एडिंग. Why? Because ये जो T1 cos थीटा और T1 sin थीटा, इन दोनों को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये cos थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, sin थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा. और जब हम ऐड करेंगे तो T1 स्क्वायर कॉमन निकल आएगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा will become 1, and then we can just be left with this T1 alone, and we'll be able to find out that T1 easily. तो यहाँ पे टेंशन निकालने के लिए अब देखो यार, इस पूरे डेरिवेशन का हेडिंग ही ये है, we have to find out the tension in the string of conical pendulum. Okay, and we can just denote it by T1 in this case, that is to be found out. Okay, so T1 निकालने के लिए हमको देखो क्या करना है, ये इक्वेशन का स्क्वायर करना है. तो मतलब हमको स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, ये स्टेप करना है, ये हमको करना है. ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग. अभी देखो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इट विल बिकम T1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, इज इक्वल टू, इस तरफ इसको भी अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो क्या होगा, m स्क्वायर g स्क्वायर, करेक्ट है. यस, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 स्क्वायर्ड. ओके, ये हमारा हो गया. I think video has freezed or what?
Yes. Okay. So basically this is the square of this equation number 1 here. And similarly we can just find out the square of equation number 2 and get it as t1 square sine square theta is equal to, here it will be fc square, and that is going to be the equation number 2 square. Okay, and we have to add this also. इन दोनों इक्वेशंस को हमको ऐड करना है, वर्टिकली ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एडिशन करेंगे तो इसमें आएगा t1 स्क्वायर cos square theta plus t1 square sin square theta, okay, which is going to be equal to m square g square plus fc square as it is. Yes, now we can just take this t1 square common from these two terms, right? तो इन दोनों में से अगर हमने t1 square common निकाल लिया तो अंदर में क्या बचेगा, देखो, तो अंदर बचेगा cos square theta plus sin square theta, okay, which is going to be equal to m square g square plus fc square. Yes, now once again we have the two options for fc. Okay, fc के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है फिर से, एक तो mv स्क्वायर अपॉन r यूज कर सकते हैं या तो m और ओमेगा स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट विल बी बेटर, कैन यू सजेस्ट? Yes, fc is equal to m r omega square will be better. Okay, so let us use it here and get this as t1 square into, this whole thing will reduce into 1 because we know already that cos square theta plus sin square theta is going to be 1. तो ये पूरा जो ब्रैकेट है वो 1 बन गया, ठीक है। And in the next step t1 square into 1 will become t1 square only, no doubt, and that is going to be equal to, here it is mg square, that means m square g square plus fc जिसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, that is m r omega square, लेकिन just don't forget this square here, ये भी यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इसलिए इस m r omega square का पूरा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या बनेगा, t1 square will be equal to m square g square plus, yes, if we just separate this square for all these terms here in this bracket, then we can be able to get this as m square into r square into omega square का square, okay। But just see here, what is omega square? Omega square we have already obtained it as g by h, so just put it here, okay। तो omega square का ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो just by recalling it as omega square is equal to g by h, so if we just put it here then we can get this t1 square is equal to m square g square plus, here it is going to be m square into r square into ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे, ये ओमेगा स्क्वायर के बदले आ गया g by h और उसका स्क्वायर as it is, okay। Now we can just simplify this still further and get it as m square g square plus, अब यहाँ पे देखो ये g upon h का होल स्क्वायर मतलब क्या बनेगा, g स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं आराम से m स्क्वायर into r स्क्वायर into g स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय h स्क्वायर भी चलेगा, ठीक है। अभी इस इन दोनों टर्म्स में से हम देख सकते हैं m स्क्वायर is going to be common in both the terms, so it can be taken out. G square is also there already, so that we can take it out. So if we just take this m square and g square out, then we can be able to get this as m square into g square taken outside the bracket, and what will be left in the bracket, अब यहाँ पे देखो m square g square पूरा ही बाहर चला गया तो अंदर में क्या बचेगा, simply 1 बचेगा, that's it। So here it is going to be 1, okay, and plus here it will be m square g square बाहर चला गया और अंदर में क्या बचेगा, simply r square upon h square, that's all, correct है। Yes, getting up to this step, okay, what will happen to in the next step now? अभी next step में क्या होगा, हमको t1 निकालना है, don't forget we have to find out the tension in this string in case of conical pendulum. So how will you get this tension t1 here? So t1 will actually be equal to, अभी m square g square का जो स्क्वायर रूट है तो वो तो mg मिल जाएगा बिल्कुल, तो ये बन गया mg, but can you separate this square root of this 1 plus r square by h square, and can you say that it will be 1 plus r by h simply? No, okay, here प्लस साइन के लिए हम स्क्वायर रूट सेपरेट नहीं कर सकते हैं, याद रखो ठीक से, इसको हमको रूट ऑफ 1 प्लस
आर अपॉन एच का होल स्क्वायर ऐसा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज फाइन, यही फाइनल आंसर होगा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन केस ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। रिमेंबर, दिस विल बी एक्चुअली द फाइनल फॉर्मूला। ओके, तो याद रखो इसको भी ठीक से, एंड जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो so that we can move further. Up, stop. Yes. Finish with this? Okay. तो चलो, ये जो डेरिवेशन हमने आज किया है, दो डेरिवेशंस हमने किए। पहला वाला जो है कोनिकल पेंडुलम का पीरियड ढूंढ के निकालने का, ओके, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, उसके लिए हमने देखा। और दूसरा आज हमने ये देखा कि टेंशन जो है, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, तो इसके लिए भी हमने एक डेरिवेशन किया सेपरेट, जिसके अंदर यहाँ पे T1 का फॉर्मूला हमने निकाल के दिया, ठीक है। अभी ये दोनों फॉर्मूले डेरिवेशन में अगर किधर भी कुछ भी अगर आपको डाउट है या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो अभी। आई एम हियर टू एक्सप्लेन इट। यस, if you have any doubt in this any one of the two derivations, you can just put it in the chat box or just unmute yourself and ask it here. I'll just repeat it again. Okay, so I hope you have no doubt. Okay, so let me announce that ये जो डेरिवेशन है, दोनों डेरिवेशंस या दोनों फॉर्मूलेज जो है, तो इन दोनों फॉर्मूलेज के ऊपर एक सिंपल सा एक पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको आज के लेक्चर के बाद मिल जाएगा, ठीक है। 7-8 बजे तक मिल जाएगा, जिसके अंदर 10 एमसीक्यूज रहेंगे, याद रखो ठीक से, 10 एमसीक्यूज ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। दैट इज अबाउट द कोनिकल पेंडुलम, ओनली कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम के ऊपर बेस्ड 10 एमसीक्यूज आपको रहेंगे, और वो आपको कल तक, मतलब दोपहर 3 बजे तक आपको सबमिट करने हैं, ठीक है। कंपलसरी सभी को सबमिट करने हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ऑल ऑफ यू हैव टू सबमिट द आंसर्स ऑफ दिस 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर up to tomorrow, ठीक है, up to 3 o'clock. Okay, yes, Khushi is asking that can you do this derivation by using the another formula, that is 2 pi r upon v. अरे लेकिन खुशी, हमको यहाँ पे पीरियड निकालना ही नहीं है, ठीक है। पीरियड निकालना ही नहीं है, पीरियड तो हमने पहले ही निकाल लिया है, वो तो मैंने दोनों फॉर्मूला से बताया कैसे निकालने का, इसके पहले वाली स्क्रीन पे, करेक्ट है। लेकिन अगर आपको मुझे लगता है कि आपको ये पूछना है कि we can just do this derivation by using this mv square upon r formula, right? ये आपको पूछना है, करेक्ट है ना? ओके, तो अगर हमको करना है तो भी मैं करके दिखाता हूँ 2 मिनट में। देखो, अगेन वी हैव टू स्क्वायर इन एडिंग दिस इक्वेशंस, तो ये दोनों इक्वेशंस को हमको ऐड तो करना है, स्क्वायरिंग तो करना है, तो ये जो स्टेप है इधर तक तो बिल्कुल सेम ही आएगा। जब यहाँ पे एफसी की बात रिप्लेस करने की बात आएगी, तो हम यहाँ पे जबकि एम आर ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस किया है, उसके बदले हम यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद देखो क्या होगा। तो यहाँ पे तो इस तरफ तो टी1 स्क्वायर जो कि है ऑलरेडी वैसे ही रहेगा, नो डाउट, और यहाँ पे एम स्क्वायर जी स्क्वायर भी वैसा ही रहेगा बिल्कुल, प्लस यहाँ पे एफसी के बदले हम क्या करने वाले हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डालने वाले हैं, ठीक है। तो इससे हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर and that is the whole square as it is, करेक्ट है। ये fc का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो क्या मिलेगा। तो t1 स्क्वायर इज गोइंग टू बी m स्क्वायर इनटू g स्क्वायर प्लस हियर इट इज m इनटू v स्क्वायर। अभी देखो v स्क्वायर कितना है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढ के निकाला था वेलोसिटी का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू रूट आर जी tan थीटा, याद है सभी को, रूट आर जी tan थीटा। तो v स्क्वायर फिर क्या होगा, जरूर आर जी tan थीटा के बराबर होगा, बिल्कुल, और एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय, एक मिनट, देखो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इनटू g स्क्वायर प्लस
here it is going to be m into v square ना. अब यहाँ पे v square के लिए हमको क्या रिप्लेस करना है, क्योंकि हम जानते हैं v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी tan थीटा होता है. तो अगर वैसा है तो फिर यस v स्क्वायर के बदले क्या आएगा, आर जी tan थीटा आएगा, रूट नहीं आएगा उसके अंदर, सिंपली आर जी tan थीटा रिप्लेस हो जाएगा. तो यहाँ पे v स्क्वायर के बदले डाल दो आर जी tan थीटा. ओके, and that is to be divided by r, it is as it is, and the whole square as it is. Okay, अभी इसमें से हम देख सकते हैं क्लियर r r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, r will get cancelled and what we are left with is simply, तो देखो t1 square is going to be m square into g square plus here it is going to be mg into tan theta का whole square, करेक्ट है? yes, tan theta का whole square. अभी इसमें फिर से हम यहाँ पे देख सकते हैं एम जी और tan थीटा, इन तीनों के लिए हम स्क्वायर सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, जरूर. तो अगर हमने स्क्वायर सेपरेट कर दिया तो हमको मिलेगा t1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इनटू g स्क्वायर प्लस हियर इट इज गोइंग टू बी m स्क्वायर g स्क्वायर इनटू tan थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ही tan स्क्वायर थीटा, और जस्ट राइट इट एज tan थीटा द होल स्क्वायर. ओके, नाउ वी कैन जस्ट से दैट दिस t1 स्क्वायर इज गोइंग टू बी m square g square plus here acha m square g square can be taken common, check, you can just take this m square g square common outside the bracket and what we are left with is simply 1 plus tan square theta, correct hai? Okay, but just don't forget what is tan theta. We already derived it in last derivation that tan theta is going to be equal to r upon h, or just it is clear from the diagram itself. तो डायग्राम से ही हमको क्लियर पता चल रहा है कि tan थीटा will be equal to opposite upon adjacent, that is r upon h. ओके, तो अगर हम यहाँ पे tan थीटा के बदले डाल देंगे उसको तो हमको मिल जाएगा t1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर g स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर. व्हाट इज tan थीटा, r upon h. तो इसलिए यहाँ पे अगर डाल देंगे उसको तो मिलेगा r upon h और उसका स्क्वायर. दैट्स इट. And if we just take the square root on both sides, we can get it as t1 is equal to simply mg into root 1 plus r by h का whole square. Okay, already there. This one is the same thing. Okay, यही इक्वेशन हमने यहाँ पे भी डिराइव किया था, वही हमको उधर से भी मिल रहा है, तो दूसरे मेथड से भी हमको सेम इक्वेशन मिल रहा है. Again, if we just think carefully, थोड़ा अगर हम सोचेंगे तो तुमको पता होगा कि 1 plus tan square थीटा क्या होता है, पता है? कौन बताएगा सब में से? What is the formula for 1 plus tan theta, tan square theta? Sec square theta. Yes, 1 plus tan square theta is the formula for Sec square theta. अरे तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है. Sec square theta. हाँ, अभी कोई तो भी बोलो एक बार. Just let me check if the sound is working or not. Sec square theta. Yes, so we can have this as a sec square theta, correct है? तो ये पूरा जो है वो बन जाएगा sec square theta, और अगर हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे ना तो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर g स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर थीटा मिलेगा, और अगर स्क्वायर रूट लेंगे ना, स्क्वायर रूट दोनों तरफ, तो देखो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा t1 इज इक्वल टू mg इनटू sec थीटा, करेक्ट है? और sec थीटा मतलब क्या होता है पता है तुमको? इट्स 1 अपॉन cos थीटा, राइट? 1 अपॉन cos थीटा, और अगर इस sec थीटा को हमने 1 अपॉन cos थीटा लिख दिया तो वो cos थीटा उस तरफ चला जाएगा, वो साइड में t1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हमको मिलेगा सिंपली t1 cos थीटा इज इक्वल टू mg व्हिच इज ऑलरेडी देयर. सी हियर, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बता रहा है? t1 cos थीटा इज इक्वल टू mg, वही तो यहाँ पे हमको मिल रहा है. ठीक है, for this lecture and this derivation, just solve the MCQs, 10 MCQs which will be given to you today. ठीक है, and
Just we'll see you in the next lecture with the next topic. Thank you all of you. Bye bye.